فلم کے شروع میں ایک نرسنگ ہوم دکھایا جاتا ہے جہاں ایک بوڑھا آدمی ڈیوک اپنی ڈائری میں لکھی ایک رومانٹک کہانی ایک نرسنگ ہوم کی بوڑھی عورت کو سناتا ہے۔ کہانی 6 جون 1940 کو سیبروک آئی لینڈ ساؤتھ کیرولائنا کے ایک میلے میں پیش آتی ہے جہاں ایک غریب لکڑی کا کام کرنے والا آدمی نو اپنے دوست کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے۔ اسی وقت نو کی نظر ایک 17 سالہ لڑکی ایلی پر پڑتی ہے جو گرمیوں کا موسم اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزارنے کیرولائنا آئی ہے۔ وہ اپنے دوست سے جانتا ہے کہ وہ ایک بہت امیر آدمی کی بیٹی ہے۔ ایلی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے جب نو فوراً اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہتی ہے۔ ایلی اس میں دلچسپی نہیں رکھتی اور اپنے دوستوں کے ساتھ چلی جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ نو جو ہر حال میں اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہتا ہے اس کی توجہ حاصل کرنے کے دوسرے طریقے تلاش کرتا ہے۔ جب ایلی اور اس کے دوست فیرس ویل کی سواری کرنے جاتے ہیں نو اچانک سواری کے بیچ میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور دوبارہ ایلی سے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ وہ دوسری بار اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہتی ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ اگر ایلی نے ہاں نہ کی تو وہ اوپر سے چھلانگ لگا دے گا۔ یوں ایلی کو ہاں کہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ڈر جاتی ہے کہ کہیں وہ اصل میں چھلانگ نہ لگا دے۔ اگلی صبح نو دوبارہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ڈیٹ پر جائے جیسا کہ اس نے کل رات وعدہ کیا تھا، لیکن وہ یہ جان کر بہت گھبرا جاتا ہے کہ ایلی نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ وہ ایلی سے کہتا ہے کہ وہ اب سے اس کی ہر بات مانے گا اگر ایلی اسے صرف ایک موقع دے۔ اس کے باوجود وہ اب بھی اس سے ڈیٹ نہیں کرنا چاہتی۔ اسی رات اس کا دوست فن اور ایلی کی دوست سارا نو اور ایلی کے لیے ایک مووی تھیٹر میں ملاقات کا انتظام کرتے ہیں۔ اندر دونوں مسلسل ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہتے ہیں اور مسکراتے رہتے ہیں۔ فلم دیکھنے کے بعد نو ایلی کو اپنے دوستوں کے ساتھ گھر جانے کے بجائے واک پر لے جاتا ہے۔ بعد میں ایلی اسے بتاتی ہے کہ وہ روزانہ کیا کرتی ہے اور اس کی باتوں سے صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی پر اس کے پیرنٹس کا پورا کنٹرول ہے۔ نو کو محسوس ہوتا ہے کہ ایلی کی زندگی میں کوئی آزادی نہیں ہے، اس لیے وہ ایلی کو کہتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کرے جو اس نے کبھی پہلے نہ کیا ہو۔ وہ سڑک کے درمیان لیٹ جاتا ہے اور ایلی کو کہتا ہے کہ وہ بھی لیٹ جائے۔ ایلی شروع میں یہ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ سڑک پر ابھی کوئی گاڑی نہیں ہوتی وہ نو کے ساتھ لیٹ جاتی ہے۔ چند لمحوں بعد اچانک ایک گاڑی آ جاتی ہے۔ ایلی چیختی ہے اور ٹکرانے سے پہلے ہی دونوں سڑک پر سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایلی کو یہ سب بہت مزیدار لگتا ہے اور وہ خوب ہنستی ہے۔ اس سب کے بعد وہ دونوں ڈانس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو جاتے ہیں۔ ایلی کو یہ سب بہت اچھا لگتا ہے اور وہ زندگی میں پہلی دفعہ اتنا آزاد محسوس کرتی ہے۔ اس رات کے بعد ان کا افیئر شروع ہوتا ہے اور وہ اپنا اکثر ٹائم ایک ساتھ گزارتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیار بھی کرنے لگتے ہیں۔ ایک رات ایلی نو کے گھر جاتی ہے اور اس کے باپ فرینک سے ملتی ہے جو خوشی سے اس سے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ وہ فرینک کے لیے اپنی پینٹنگ لے کر آتی ہے جو اسے بہت پسند آتی ہے اور وہ بدلے میں ایلی کو نو کے بچپن کی شرارتوں کی کہانیاں سناتا ہے۔ ایلی اور نو خوب ہنستے ہیں۔ اس کے بعد سب مل کر کھانا کھاتے ہیں اور خوب باتیں کرتے ہیں۔ دن با دن ایلی اور نو کا پیار بڑھتا جاتا ہے، کوئی بھی چیز انہیں الگ نہیں کر پاتی۔ ایلی نو کے خاندان اور دوستوں کے بھی قریب ہونے لگتی ہے۔ وہ اکثر فن اور سارا کے ساتھ ڈبل ڈیٹس پر بھی جاتے ہیں۔ بعد میں ایلی کے پیرنٹس جان ہیملٹن اور اینی ہیملٹن نو کو اپنے گھر کھانے پر بلاتے ہیں۔ کھانے کے دوران نو سب کو بتاتا ہے کہ وہ لکڑی کے مل میں کام کرتا ہے اور 1 گھنٹے میں صرف $3 کماتا ہے۔ یہ سن کر میز پر موجود سب خاموش ہو جاتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کا خاندان نو سے متاثر نہیں ہے، اور پھر اینی بتاتی ہے کہ ایلی گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد نیو یارک واپس جا رہی ہے، جو سن کر نو بہت دکھی ہوتا ہے۔ اسی شام نو ایلی کو ایک پرانے ٹوٹے ہوئے گھر لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس گھر کو دوبارہ ٹھیک کر کے خرید لے گا تاکہ وہ دونوں بعد میں یہاں رہ سکیں۔ وہاں وہ پہلی بار محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایلی گھبرا جاتی ہے اور نو کو کہتی ہے کہ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد فن اچانک انہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایلی کے پیرنٹس نے اس کی تلاش میں پولیس کو بلایا ہے کیونکہ کافی رات ہو چکی ہے اور وہ گھر نہیں گئی۔ یہ سنتے ہی وہ ایلی کو فوراً گھر لے جاتے ہیں۔ گھر میں ایلی کے پیرنٹس خاص طور پر اس کی ماں اسے بہت برا بھلا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ ایلی نو جیسے غریب انسان کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتی اور اب سے ان دونوں کا ملنا بند ہے۔ ایلی کی ماں کی گالیاں سن کر نو گھر سے باہر جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن ایلی فوراً اس کے پیچھے آتی ہے۔ جذباتی ہونے کی وجہ سے دونوں میں بہت برا جھگڑا ہوتا ہے اور نو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے منظر میں ہم ڈیوک اور بوڑھی عورت کو دوبارہ دیکھتے ہیں جو کہانی سن کر کہتی ہے کہ ایلی بہت دکھی ہو گئی ہوگی اور نو کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے چاہے اس کے والدین اس کے بارے میں کچھ بھی کہیں۔ اگلی صبح ایلی کو اپنی ماں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی دن چارلسٹن واپس جا رہے ہیں، حالانکہ ابھی چھٹیوں کا 1 ہفتہ باقی پڑا تھا۔ ایلی جانا نہیں چاہتی لیکن اینی اس کے ساتھ زبردستی کرتی ہے کہ اسے جانا تو پڑے گا چاہے جو بھی کر لے۔ ایلی نو سے اس کے کام کی جگہ ملنے جاتی ہے لیکن وہ سامان دینے کہیں اور گیا ہوتا ہے۔ ایلی فن سے کہتی ہے کہ وہ آج ہی اپنے شہر واپس جا رہی ہے اور نو کو کہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے۔ جب نو واپس آتا ہے تو فن اسے ایلی کے جانے کی خبر دیتا ہے اور وہ فوراً ایلی کے گھر جاتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ دیر سے پہنچتا ہے اور ایلی وہاں سے جا چکی ہوتی ہے۔ نو ایلی کی یاد میں 1 سال تک ہر روز اسے خط بھیجتا ہے لیکن دوسری طرف اینی انہیں چھپا لیتی ہے تاکہ ایلی کو یہ نہ پتہ چلے کہ نو اسے ابھی بھی یاد کرتا ہے۔ 365 خطوط کے بعد بھی جواب نہ ملنے پر نو لکھنا بند کر دیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ اگر ایلی اسے بھول گئی ہے تو وہ بھی اسے بھولنے کی کوشش کرے گا۔ نو اور فن اپنی زندگی جاری رکھتے ہیں۔
वो दूसरी जंग अजीम में लड़ने के लिए भर्ती होते हैं, जहां बदकिस्मती से फिन जंग में मारा जाता है। दूसरी तरफ एली जख्मी फौजियों की देखभाल करने के लिए आर्मी नर्स के तौर पर अस्पताल में काम करने लगती है, जहां इसकी मुलाकात कैप्टन लोन हैमंड से होती है, जो इसे डेट पर जाने को कहता है। वो बहुत अमीर होता है और वकील के तौर पर काम करता है। कुछ ही वक्त में दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं और चंद साल बाद लोन इसे शादी करने को कहता है, जिस पर एली के वालिदैन तो बहुत ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ नू जंग से वापस आता है तो इसे पता चलता है कि इसके बाप ने उनका घर बेच दिया ताकि उन पैसों से नू वो पुराना घर खरीद कर ठीक कर सके जो इसने एली को दिखाया था। नू खुद को दिलासा देता है कि अगर वो ये घर ठीक कर लेगा तो शायद एली इसके पास वापस आ जाए। कुछ अरसे बाद नू नए घर के पेपर्स लेने चार्ल्सटन जाता है कि अचानक रास्ते में सड़क पर एली को जाते देख लेता है और उसके पीछे भागता है। बदकिस्मती से वो एली को लोन को किस करते देखता है और बहुत दुखी होता है। इसका दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और घर बनाता रहता है, इस उम्मीद के साथ कि एली इसके पास वापस आ जाएगी। मौजूदा टाइम लाइन में हम देखते हैं कि एक नर्स ड्यूक और बूढ़ी औरत के पास आकर कहती है कि वो पहले दोपहर का खाना खा ले और बाद में अपनी कहानी जारी रखें। दूसरी तरफ कुछ साल गुजरने के बाद फ्रैंक मर जाता है और नू घर के साथ अकेला रह जाता है। तकरीबन 10 दिन में वो घर बेचने के लिए सेल पर रख देता है। बहुत से लोग इसका घर खरीदना चाहते हैं, यहाँ तक कि इसे जितनी वो चाहता है इससे ज्यादा रकम भी देते हैं, लेकिन वो हमेशा इसे ना बेचने का कोई बहाना ढूंढ लेता है। एक दिन जब एली की शादी के ड्रेस की तैयारी हो रही होती है, वो अखबार में नू के मुकम्मल किए गए घर की कहानी देखती है और जज्बाती दबाव की वजह से बेहोश हो जाती है। इसे समझ आने लगता है कि वो नू से अपनी मोहब्बत को अभी तक भूला नहीं सकी और वो लोन से शादी से पहले अकेले सफर पर जाने की इजाजत मांगती है। फिर वो सीब्रूक वापस आती है और नू को इसी घर में पाती है जैसे वो इसके लिए ठीक करना चाहता था। लेकिन कहानी बीच में रुक जाती है जब डॉक्टर को दोबारा ड्यूक का हेल्थ चेकअप करना पड़ता है। दूसरी तरफ बूढ़ी औरत को ऐसा महसूस होता है जैसे इसने ये कहानी पहले कहीं सुनी है। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि ड्यूक को पिछले 18 महीनों में 2 बार दिल के दौरे पड़े हैं। डॉक्टर इसे बताता है कि बूढ़ी औरत की याददाश्त वापस लाने की इसकी कोशिशों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके डिमेंशिया का कोई इलाज नहीं। लेकिन ड्यूक फिर भी यकीन रखता है कि वो इसे ये कहानी बार बार सुनाकर इसे सब याद दिला देगा। कहानी में एली नू को अपनी होने वाली शादी का बताती है और कहती है कि उन्हें अब दोस्तों की तरह ही रहना चाहिए। नू एली को खाने की दावत देता है और दोनों इस घर में गुजारी रात के लम्हों को याद करते हैं। वो याद करने लगती है कि पहले वो एक दूसरे के कितने दीवाने हुआ करते थे। जब एली वापस जाने लगती है तो नू इसे अगले दिन दोबारा मिलने को कहता है, क्योंकि वो इसे एक खास जगह ले जाना चाहता है। वापस नर्सिंग होम में ड्यूक के बच्चे और पोते पोतियां उनसे मिलने आते हैं। वो बूढ़ी औरत को पहले से ही जानते हैं। वो सब ड्यूक से कहते हैं कि अब वो उनके साथ वापस घर आ जाए, क्योंकि इसकी सब कोशिशों के बाद भी बूढ़ी औरत की याददाश्त वापस नहीं आई और ना ही कभी आएगी। वो ड्यूक को कहते हैं कि वो हर हफ्ते बूढ़ी औरत से मिलने भी आएंगे। इस सीन में अब हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत असल में ड्यूक की बीवी है, लेकिन सबके कहने के बावजूद ड्यूक बूढ़ी औरत के पास ही रहना चाहता है और कहता है कि जरूर कोई मौजिज़ा होगा और उसकी याददाश्त ठीक हो जाएगी। कहानी में एली सीब्रूक के एक होटल में फोन पर लोन से बात कर रही होती है। लोन कहता है कि वो एली के लिए बहुत फिक्रमंद है, क्योंकि वो अकेले सफर कर रही है। वो इसे कहती है कि फिक्र न करे और कल दोबारा इसे फोन करेगी। वादे के मुताबिक एली अगली सुबह नू के घर जाती है। दोनों न चाहते हुए भी एक दूसरे के लिए अपने पुराने जज्बात महसूस करने लगते हैं। नू इसे अपने साथ झील की सैर पर ले जाता है, जहां वो बत्तखों को खिलाते हैं और खूब मजा करते हैं। अभी वो पानी में ही होते हैं कि सख्त बारिश शुरू हो जाती है। इस लम्हे काफी साल गुजरने के बाद एली अपनी जिंदगी में दोबारा आज़ादी महसूस करती है। वो फिर अपने छुपे गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और नू से पूछती है कि इसने इसे इतने सालों में एक भी खत क्यों नहीं भेजा। फिर इसे नू से पता चलता है कि इसने इसे 365 खत भेजे थे, लेकिन एली ने ही इसे कभी जवाब नहीं दिया। फिर वो इसे बताता है कि सब कोशिश के बाद भी वो इसे कभी नहीं भूला सका। एक दूसरे के एहसास में गुम दोनों खुद पर काबू नहीं रख पाते और अगली कई रातें इकट्ठे गुजारते हैं। एक सुबह एली के उठने से पहले नू कहीं गया होता है, लेकिन एली के लिए एक कैनवस और पेंटिंग पेन छोड़ जाता है। एली खुश होती है कि नू को अभी भी याद है कि इसे पेंटिंग करना पसंद है और फिर पेंटिंग करती है। इस वक्त एनी वहां आ जाती है और एली को बताती है कि लोन इसे ढूंढते हुए सीब्रूक तक आ चुका है। एली इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी मां से इन खतों के बारे में बात करती है जो वो बरसों से इससे छुपा रही थी। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिर एनी इससे कहती है कि वो इसे कुछ दिखाना चाहती है। वो बताती है कि एली की तरह वो भी कभी एक गरीब आदमी से प्यार कर बैठी थी और अभी भी इसके बारे में सोचती है। फिर वो एली से मुआफी मांगती है और कहती है कि एली को जो बेहतर लगता है वो कर ले। जब वो नू के घर वापस आते हैं तो वो पहले ही घर पर होता है और एनी आखिर एली को वो खत वापस कर देती है जो नू ने लिखे थे, उम्मीद करते हुए कि वो सही फैसला करेगी। इसके बाद एली नू को बताती है कि अब इसे जाना होगा क्योंकि लोन सीब्रूक पहुंच चुका है। ये सुनकर नू बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है क्या एली भी अपने वालिदैन की तरह सिर्फ पैसे की दीवानी है? क्या वो सिर्फ नू के जज्बात से खेल रही है? और लोन के भी। एली कोई मुकम्मल फैसला नहीं कर पाती और होटल वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। परेशानी की वजह से वो रास्ते में एक गाड़ी से लगते लगते मुश्किल से बचती है। इसी वक्त वो अचानक नू के खत निकालती है और पढ़ने लगती है। नू के प्यार भरे अल्फाज पढ़कर वो दुखी हो जाती है और रोने लगती है। मंजर ड्यूक और उसकी बीवी की तरफ चला जाता है। किसी वजह से बूढ़ी औरत को ये कहानी सुनकर बहुत दर्द महसूस होता है। ड्यूक फिर इसे रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाता है जो इसने खास इसके लिए तैयार किया होता है। लेकिन बूढ़ी औरत को बहुत तजस्सुस होता है कि एली किस मर्द के साथ रहने का फैसला करेगी। होटल में वापस एली लान से मिलती है और इसे अपने अफेयर के बारे में सब सच बता देती है। वो ये सब सुनकर चुप हो जाता है, नहीं जानता कि क्या करे।
आखिर वो कुछ सोचने के बाद कहता है कि वो अब भी एली से मोहब्बत करता है और इसे वापस चाहता है, लेकिन वो इसे जबरदस्ती शादी पर मजबूर नहीं करना चाहता। इस सब के बाद एली अपने दिल की सुनती है और नू के पास वापस चली जाती है। कहानी के आखिर में ड्यूक अपनी बीवी को बताता है कि नू और एली हमेशा खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। इसी दौरान बूढ़ी औरत को याद आना शुरू हो जाता है कि कहानी में मौजूद जोड़ा वो दोनों खुद हैं। बूढ़ी औरत एली है और बूढ़ा आदमी नू है। ड्यूक बताता है कि इसने जानकर अपना असल नाम छुपाया ताकि एली की यादें कुदरती तौर पर वापस आ सके। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और साथ मिलकर डांस करते हैं। एली फिर पूछती है कि क्या इसे ये सब याद रहेगा। ड्यूक कहता है कि वो जल्द ही सब दोबारा भूल जाएगी, इसलिए इस लम्हे वो सिर्फ इसके साथ डांस करना चाहता है जैसे वो हमेशा करते थे। अभी एली इससे उनके बच्चों के बारे में ही पूछ रही होती है कि सब भूल जाती है और डर कर चीखने लगती है। इसे अपने आप को नुकसान पहुंचाने के डर से मेडिकल स्टाफ को इसे जबरदस्ती पकड़कर बेहोश करना पड़ता है, लेकिन ड्यूक यानी नू को ये सब देखकर बहुत सदमा पहुंचता है। बाद में नू दोनों की जिंदगी के लम्हे याद करता है और एली की नोटबुक पढ़ता है जो उसने अपनी बीमारी के शुरू में लिखी थी कि अगर वो कभी सब भूल जाए तो ये पढ़कर नू को याद कर सके। अगले दिन नू को अचानक दिल का दौरा पड़ता है और इसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ एली को इसी अस्पताल के डिमेंशिया वार्ड में बंद कर दिया जाता है, लेकिन इसे ऐसे लगता है जैसे इसका दिल अभी भी किसी का इंतजार कर रहा है। इसी रात थोड़ा ठीक महसूस करने के बाद नू एली से मिलने के लिए नर्स से मिन्नत करता है। पहले वो इसे मना कर देती है, लेकिन इसके बार बार कहने पर मान जाती है और नू एली के कमरे में जाता है, जहां एली एक बार फिर इसे पहचान लेती है। वो डरी हुई होती है कि अगर इसे दोबारा भूल गई तो क्या करेगी। नू इसे कहता है कि डरे ना, क्योंकि वो हमेशा इसके साथ रहेगा। फिर वो किस करते हैं और हाथों में हाथ लिए सो जाते हैं। अगली सुबह जब नर्स उन्हें जगाने आती है तो दोनों को मरा हुआ पाती है। दोनों हाथ पकड़े इकट्ठे दुनिया से जा चुके हैं।